First. So as you all know, today we all have gathered for a wonderful workshop for which we will be, not only learning how to be, self-independent, but the most important part of today's workshop is that we are going to make you learn the techniques of self-defense. आई थिंक सेल्फ डिफेंस आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है. इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दीज डेज बिकॉज वी ऑल आर वुमेन, राइट? हम सब लोग लेडीज हैं और लेडीज के लिए ये चीज बहुत जरूरी है. एंड आई एम श्योर आज आप लोग अपने बच्चों के साथ हैं यहाँ पे. वी हैव ऑलरेडी told you कि bring your children along with you in the session today. So can I see the happy and smiling faces of your children as well? अगर हैं आपके बच्चे साथ में, especially if you have teenage daughters or you have girl child, तो प्लीज उनको तो जरूर साथ में रखें आज के सेशन में, बिकॉज दिस सेशन इज स्पेशली वी हैव ऑर्गेनाइज्ड फॉर योर क्यूट किड्स, योर गर्ल्स, योर बॉयज, डजंट मैटर वेदर इट्स अ बॉय और अ गर्ल. आज के टाइम पे सबके लिए जरूरी है, तो उनको भी इस चीज में आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन दें आज जो हम आपको इस वर्कशॉप में बताने वाले हैं. सो आई थिंक विदाउट मच डू, let's begin with the workshop. But I am all excited to give you all the introduction of our the trainer or the host who's going to take the workshop today. It is none other than Vanshika. She is an orange belt holder in Taekwondo. तो अगर मैं वंशिका की बात करूं, शी हरसेल्फ इज अ स्टूडेंट. वो खुद एक गर्ल है, स्टूडेंट है, एंड शी इज अ स्टूडेंट विद स्किल निंजा अकेडमी आल्सो, बिकॉज शी इज ऑलरेडी इनटू दिस सेल्फ डिफेंस एंड मार्शल आर्ट्स workshops she does, and she thought that this is one thing which I can give to Skill Ninja Academy as well, because this is only a women oriented organization which will definitely going to help the women with the ladies. So I think Vanshika, all are excited to meet you and all wants to know from you that what exactly you will be covering in this session today. So over to you, Vanshika, and I'm sure we will be learning good things with you, and this is going to make us self independent in any situation which we face in our life. Over to you, dear. Thank you, ma'am, for introducing me. So, as I am a student, there is a little more information about me. I am a law student and I am pursuing also BCom also, and I have started my Taekwondo journey from 2017 only, and then I got orange belt. Then only I have been practicing this self defense, and I have been teaching women that how important this is. So a very warm welcome to all beautiful ladies here. So let's get into it. I think Vanshika, with your this note, beautiful ladies, you have brought a big smile on everybody's face, right? So smile to dikha do yaar, please. See, we have to encourage Vanshika. So it's very important for you all to be active on chat box. See, बच्चे भी encourage होते हैं जब हम उन्हें encourage करते हैं, तो आज वंशिका को आपकी encouragement की जरूरत है. So keep on showing a thumbs up, keep on showing a heart and emoji. So let's begin with the session. So here we are starting our session with empowering women self-defense technique for personal safety. So I am here to aware you all for how important this is and what does it means, that what is self-defense, and let's get understand what does self-defense mean. So it is a concept that you will protect yourselves from harm when someone is like facing something. So you have to defend yourself mentally, and basically you just have to mentally prepare yourself for such things, so you don't panic at the time. So it is also important to train yourself mentally also and physically also. In like in such a event, your mind reacts it what it feels normal. So it self-defense teaches you what it is normal thing rather than run away from there. So here some strategy you need to know. तो आई थिंक वंशिका, आप थोड़ा डिटेल में जो आपने पीछे पॉइंट बताया है उसको थोड़ा डिटेल में बताएं. लाइक यू आर मेंशनिंग कि हमें भागना नहीं है, तो आप इसको कोई एग्जांपल के साथ साथ में अगर बताएंगे तो. ओके, यस मैम. Like if you are आप कोई मतलब वी कैन बी बाइलिंगुअल, है ना, हम थोड़ा सा क्लियरली इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. if you are going somewhere alone,
and someone comes to you, जैसे आपको कहीं अकेला फील हो रहा है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपके इंस्टिंक्ट सही है, कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मुझे कोई बैड टच कर रहा है, तो वो आपके इंस्टिंक्ट्स हैं जिनको आपको ट्रस्ट करना है। जैसे कि आप कहीं बाहर जा रहे हो अकेले, और अगर आपका कोई पीछा कर रहा है और आपका कोई अगर आता है पर्स वगैरह चुराने, तो लाइक यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ एंड यू डोंट हैव टू रन अवे, you just have to defend yourself only. So here are some strategies you need to follow. First, you should be very confident with yourself. You don't मतलब तुम्हें आपको घबराना नहीं है कि अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगी, मुझे भागना नहीं है, मैं डरूंगी तो मुझे वो और डराएंगे, तो मुझे डरना नहीं है उनसे। और हमें सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है सबके साथ। और हमें कुछ कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे अगर आपको कोई यहाँ से आता है और यहाँ पे हमें ग्रैब करता है, या फिर हमें कोई पीछे से ग्रैब करता है, तो हमें सिर्फ उनको एकदम सिंपल टेक्निक से उन्हें ऐसे उनके फेस में या फिर किक करना है, या फिर उनकी आईज वगैरह ऐसे कोई मेन पॉइंट्स में जहाँ पे वो देख ना सके या फिर वहां पे कोई रुक जाए, तो ऐसी जगह उन्हें हिट करना है। अगर मुझे कोई आके ग्रैब करता है यहाँ पे, तो मैं उनकी आके आईज को ऐसे पकड़ लूंगी जैसे वो देख ना सके फिर, और मैं वहां से भाग जाऊंगी। तो मुझे ऐसे करना है, और वहां पे पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आप पैनिक कर जाएंगे, आप खुद ही में घबरा जाएंगे, तो आप उनको फेस नहीं कर पाएंगे। और अगर जैसे इसमें लिखा है हाउ टू एस्केप अ नेक चोक, व्हेन समवन ग्रैब्स यू हियर, यू जस्ट नीड टू गेट पुश देम, एंड यू जस्ट हैव टू लाइक उनकी आंखों में ऐसे करके उन्हें यहाँ पे पंच करके तुम्हें भागना है। There are some self defense technique. There are some punches I will be showing you all. तो यहाँ पर हम वंशिका आई थिंक हम पहले No, ma'am, I will be showing myself only here. Ma'am, then I will be calling. ओके तो जैसे यहाँ पे कोई मुझे आके मारता है, तो मैं उनकी फेस पे यहाँ पे मारूंगी। जब सामने से कोई आएगा तो मुझे ऐसे करके उन्हें मारना है, और वहां पे मुझे घबराना नहीं है। तो फिर कोई अगर मुझे गले भी आके पकड़ेगा तो मैं उनको मार सकूंगी जैसे। इसलिए मुझे वहां पे पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, और मुझे बस उनके मारना है और वहां से भग जाना है, या फिर मैं आसपास के लोगों को भी बुला सकती हूँ। एंड जस्ट वी हैव टू व्हेन समवन grabs you from back, so you just have to tackle them from back only. अब जैसे आपके पास सामान है, आप अगर पर्स में स्प्रे लिए हैं, तो आप उनको कैसे यूज कर सकते हैं? उनके फेस पे पूरा स्प्रे कर दीजिए। परफ्यूम कैरी करते हैं तो उनको परफ्यूम पूरा लगा दीजिए। और अगर जैसे आपके पास कोई कुशन या चुन्नी वगैरह कुछ भी है, तो उनके नेक में ऐसे राउंड करके आप उनको ग्रैब करके भाग जाइए वहां से। मैम, नाउ आई विल बी कॉलिंग माय फॉर द ओके। तो वंशिका आप एक बार स्टॉप स्क्रीन शेयर करें। यस मैम। So here what Vanshika wants to mention you all. Okay, so what Vanshika wants to share with you all here is that there are many techniques that you need to follow when you have to defend yourself when there is a attacker in front of you. And what happens is that we don't actually understand that who is the attacker. But in such situations, we don't have to be panic. We have to take a deep breath. We have to stay where we are and follow the techniques which Vanshika is going to share right now. Now, what Vanshika has planned for you all is that she is calling her, one of her friend that would be pretending to be an attacker. Okay, and she will be imitating as she will be showing off as if she is the one who is going to survive in that situation. Okay, so you have to observe, you have to imagine that you are Vanshika who is in that situation, in that panic situation, and the other person is the attacker. So how you are going to help yourself in that situation and defend yourself.
Okay, and this applies for children as well. बच्चों की थोड़ी height छोटी होती है, so we will be telling some techniques for children as well, because having the knowledge about good touch, bad touch is something very important. और यहाँ पर मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी सब मदर्स को, कि आप एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, प्लीज कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड, दैट एवरी डे प्लीज चेक योर चाइल्ड्स कंप्लीट बॉडी. Okay, because when of course they are taking a bath, always check their hands, their chest area, their legs. There should not be any bruises or any kind of red impression on their body, and if you see anything like that, please immediately ask your child that did anyone hit you, did anyone touch you, because if somebody is going to touch them hard on their elbow or on their arm, they're going to be a red impression on their skin. Okay, and especially this is for those mothers who have children below 7 years old. Okay, Vanshika is going to share in detail also related to children. Now let's come back to Vanshika. Vanshika, you're ready with the person? Yes, ma'am. I just now inform you that when you're going with your children or you're traveling alone, you just need to carry something that you can be safe. You just always need to remember all the things. So I'm just calling my sister for the techniques. So Vanshika is calling her. And in the chat box, we want if anyone has any such story that has happened with you all. So you all can also share. And I'm sure this kind of session always help us to relate with each other. कि अगर हमारे साथ हुआ है तो किसी के साथ भी हो सकता है. And you might have seen that these days this chain snatching thing is very common. You might have seen, especially with the elderly ladies, this is happening a lot. So Vanshika, are you ready? Yes, ma'am. Okay, okay. Over to you, Vanshika. When someone grabs your hair, so yeah, ma'am, I'm visible. Yeah, just flap little downwards. When someone grabs you here, so how you have to tackle the situation? You just need to throw his hand, and you just have to push them in the face, in this face area, and you have to run. अब जब जब आपका कोई सामने से आके गला पकड़ता है, यहाँ पे आके अगर कोई आपका गला पकड़ता है तो वहां पे आपको पैनिक नहीं करना है. यहाँ पे आपको उनका फेस पे ऐसे यहाँ पे मारना है, यहाँ से आपको उनका हैंड हटाना है, या फिर अगर उनका हैंड आपको टाइट लगता है आप नहीं हटा सकते तो उन्हें आपको यहाँ से ट्विस्ट कर देना है. तो आपका वो जो हैंड होता है ना वो ट्विस्ट हो जाएगा, तो वो सामने वाला कुछ भी नहीं कर पाएगा. तो आपको बस यहाँ पे ट्विस्ट करना है और उनके फेस पे पंच करके भागना है, या फिर यहाँ पे उनके पेट वगैरह पे पंच करके भाग जाना है. और ये सारी टेक्निक्स है जो आपको हमेशा याद रखनी है. जब आपको कोई यहाँ पे ऐसे खींच के पीछे से पकड़ लेता है, जब आपको कोई पीछे से ऐसे पकड़ लेता है तो आपको यहाँ से उनके दोनों हाथ यहाँ से पकड़ के और उन्हें रोटेट करके ऐसे मारना है. बस आपको पंचिंग आनी चाहिए. पंचिंग मैंने अभी भी बताया था, उनके या फिर यहाँ पे जॉ एरिया पे पंच करना है या फिर उनके आईज पे उनको मार के भागना. यहाँ दो मेन सिचुएशन होती है जब आपको कहाँ पंच कर सकते हैं आप, या फिर यहाँ जॉ एरिया पे या फिर उनके आईज एरिया पे. तो वहां पे आप वहां पे उनको टैकल कर सकते हैं. अब जब आपको यहाँ पे कोई ग्रैब कर लेगा, यहाँ पे अगर आपको ग्रैब कर लेगा तो आपको उनसे ऐसे छुड़ा तो पाएंगे नहीं, यहाँ पे आपको उनको पिंच कर देना है. तो वो छोड़ पिंच करके और उनको घुमा के फिर आपको छोड़ देना है. ऐसी सारी voice is not clear. Yes, it's audible. It's audible. Yes. So okay. These are the techniques you have to just remember this all. Ma'am, I think my voice is... Yes, your voice is clear, Vanshika. Yes. Okay. And Vanshika, what in the case of children? Like children have height, है ना? उस case में. Ma'am, when some ladies traveling with their children or they are traveling alone, so ma'am, what they have to do? Ma'am, may I share my screen? Yes. Ma'am, see, in case then these are the case how they have to use their
objects, utilizing everyday objects. Like when someone is carrying a purse or bag, so they have to just hit. Ma'am, you know what the main factor of the hitting factor are? Ma'am, the eyes are the main things. Ma'am, when someone is do their eyes on the thing, so they can't see properly, and they just have to hit them and go through it. So here are some safety measures when you're traveling alone. You just when you're traveling alone, like nowadays जब आप कैब में ट्रैवल अकेले ट्रैवल करते हैं या फिर आप कहीं अकेले जाते हैं, तो आपको कैब तो डेली बेसिस में लगता ही है. मेट्रो सिटीज वगैरह पे भी यहाँ से उधर जाते हैं, तो आपको जब कैब की जरूरत पड़ती है, तो आपको कभी भी ना उनके साथ वाली आगे सीट पे नहीं बैठना है, पैसेंजर सीट में नहीं बैठना है, उनके जस्ट बिहाइंड पीछे बैठना है. अगर आप उनके पीछे बैठेंगे, तो अगर आपको कुछ ऐसे लगता है कि मैं सेफ फील नहीं कर रही, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो हर चीज में अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट करना है. अगर आपके गट्स बोलते हैं मैं यहाँ पे सेफ फील नहीं कर रही हूँ, तो आपको उसे ट्रस्ट करना है, हाँ मैं सेफ नहीं फील कर रही हूँ. आपको अगर बैड टच लगता है, तो हाँ आपको लगता है, तो आपको उसमें ट्रस्ट करना है. ऐसा कोई भी लापर ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मेरे को बस लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आजकल सब सेफ है. ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको बस ट्रस्ट करना है अपने ऊपर. तो जब आप अकेले कैब में ट्रेवल करते हैं, तो क्या होता है, आप उनके सामने नहीं बैठने हैं. अब आप अकेले हो, तो आपको खुद कहीं ना कहीं लगेगा मैं सेफ नहीं हूँ. और ज्यादातर आप नाइट में अकेले ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको ड्राइवर वाली सीट के जस्ट पीछे वाली सीट में बैठना है, जस्ट पीछे. अगर आपको कुछ लगता है, या फिर वो आपको ड्राइवर बोलते हैं कि आप अपना मैम आप अपना लोकेशन ऑन कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए, मैं आपको अपने से लेस मनी में आपको मैं लेके जाता हूँ, मैं आपको अपने ऊपर से ले जाता हूँ, तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है. आपको अपनी लोकेशंस हमेशा ऑन रखनी है, और आपको उसे ही फॉलो करना है. और आपको मैप मैप जैसे उसमें दिया रहता है कैब वगैरह पे, तो आपको उन पे ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है. आपको अपनी लोकेशन ऑन करके, और हमेशा अपनी लोकेशन ऑन करके अपने ऊपर ही जाना है. और जैसे आप अब कभी पीछे बैठते हैं, तो क्या होता है, अगर आपको कुछ लग रहा है या फिर वो कहीं रॉन्ग जगह ले जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है आपको, तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं. मैम, जैसे आप कभी स्कार्फ पहने हुए हैं, या कभी आपके पास चुन्नी वगैरह कुछ भी है, दुपट्टा वगैरह, तो आप उनके जस्ट पीछे बैठे रहेंगे, तो आपका उनका वो हेड होगा ना, तो आप उनके हेड पे ऐसे करके आप उनके बांध सकते हैं, जैसे ऐसे करके, तो आप खींच देंगे और वंशिका, बांध देंगे. हाँ वंशिका, इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप एक मिनट स्टॉप स्क्रीन शेयर करें एंड शो टू द लेडीज अगेन ऑन द स्क्रीन. यस. अगर जैसे आप यहाँ पे नहीं, बैठे, हाँ वंशिका यहाँ पे ये मेंशन कर रही है कि उस केस में अगर आपने ऑलरेडी सूट पहन रखा है एंड हाँ, यू कैरिंग योर दुपट्टा विद यू, सो इन दैट सिचुएशन व्हाट यू कैन डू. अगर आपने स्कार्फ कैरी कर रखा है या फिर दुपट्टा पहना हुआ है, तो आपने जब क्या करना है, अपना निकालना है. और अगर आपको कुछ लग रहा है वो रॉन्ग वे पे ले जा रहे हैं आपको, तो और वो आपसे कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ऐसे करके उनके गले पे दुपट्टा रखना है, और उन्हें खींच के पीछे से बांध देना है. लाइक हाउ यू टाई द नॉट, सो जस्ट यू हैव टू टाई इट, एंड यू जस्ट हैव टू ओपन द गेट. अगर वो गेट लॉक कर देते हैं, तो आपके नीचे से उसे पीछे से जो सीट होती है ना पीछे करने वाली, जो सीट को पीछे नीचे करके, तो वो वहां पे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो फंस जाएंगे वहां पे. तो आपको बस डोर ओपन करना है और आपको वहां से चले जाना है. और मेन थिंग, एक एसओएस इमरजेंसी आती है. अगर आपको किसी को पता नहीं हो, तो मैं आपको वो ऑन करना भी दिखाती हूँ मैम. Yes, yes. Now you can share your screen. These factors are very important, which Vanshika is mentioning. Especially आप अपनी गर्ल चाइल्ड, अपनी जो भी बच्चियां आपकी कैब से जा रही हैं, 11th 12th की गर्ल्स, 10th की गर्ल्स, उनके लिए बहुत जरूरी है ये चीजें. So please do give them this information. It is much required these days. मैम कोई हम्म. ट्यूशन या स्कूल से या कोई इवेंट से घर आता है लेट नाइट, तो उन्हें कैसे अपनी सेफ्टी मेजर्स रखना चाहिए. उन्हें हमेशा कुछ परफ्यूम या लिक्विड बेसिस में कैरी करना चाहिए, जो कि वो अपने पास सेफ फील करे. मैम जैसे पहले कोई जैसे आंटी लोग आटा कैरी करते थे, मिर्ची कैरी करते थे, जैसे उनके फेस में मारे और चले जाए,
वो हम्म सब वैसा तो आजकल हर कोई कोई इवेंट में जाता है तो वो परफ्यूम तो यूज ही करता है, और परफ्यूम राइट। बैक टू बैक आजकल की सारे टीनेजर्स, लाइक मैं भी कहीं जाती हूँ तो मैं परफ्यूम यूज ही करती हूँ, और मैं ले जाती हूँ कि कहीं पे मुझे यूज करना पड़े, तो वो आप उनको उसको यूज करके उनके फेस में, अब आप कभी आपके फेस या नोज में परफ्यूम चले जाते हैं तो आप उसको कुछ कर नहीं पाते, आप बस स्नीज करते रह जाते हम्म हो। तो इस कारण, और जैसे अगर ऑटो ड्राइवर्स होते हैं तो ऑटो ड्राइवर्स वगैरह, जैसे आप वो कैब से नहीं है, ओला उबर से नहीं है, तो अब ऑटो ड्राइवर्स वगैरह का आप क्या करें, जैसे कभी ऑटो पे जब आप ट्रेवल कर गए तो आपको हमेशा क्या करना है, उनकी एक पिक्चर लेनी है ऑटो ड्राइवर की साइड से, और अपने ट्रस्टेड फैमिली मेंबर को सेंड कर देना है, This लाइक is very, this is, please pin down this point. This is something very important Vanshika has mentioned, that whenever you are traveling alone in a cab, the first thing which you need to do is you have to take the picture of that person and send it immediately to your first contact person. If you like husband को भेजिए, अगर आप unmarried हैं तो अपने father, brother, जो आपके immediate help हैं, हाँ, ये तो जरूर, और दो लोगों को भेजें, नॉट टू वन पर्सन, काइंडली सेंड इट टू टू पीपल। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप एक अलोन कैब में जा रहे हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइक यू जस्ट हैव टू कॉल देम, और हम मैं अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैंने कहीं दूसरे टाउन पे मैं गई हुई थी, तो वहां पे हमें ना वो कैब बुक कराई थी, तो हमें कैब से सेफ फील नहीं हो रहा था। हम थ्री फ्रेंड्स थी हम, तो हमने क्या किया, एक ने तो अपनी लोकेशन तो हमने हटाई ही नहीं थी, और हमने स्मार्ट प्ले किया, लाइक he was an old uncle, so he was talking like some, he was drunk as he was talking like, so we thought that what should we do here, we just three girls only there, and it was like nine at night, so we just on our location and also map, so हमें पता चले हम सही जगह पे जा रहे हैं कि नहीं, और हम एक अननोन टाउन पे थे। तो हमने क्या किया, हमने अपना लोकेशन भी ऑन रखा, और हमारे पास तो परफ्यूम वगैरह थे ही थे, और उसके बाद ना मैं उनके पीछे बैठी हुई थी और सामने मेरी फ्रेंड्स बैठी हुई थी, तो हमने अपनी लोकेशन भी ऑन रखी थी, और हमने क्या किया, हम एक अपनी फैमिली मेंबर को कॉल पे ही रखा था, मतलब वो कुछ भी, हम दोनों कुछ बात नहीं करे बट वो कॉल पे ही है स्पीकर पे, तो लाइक हमें सेफ फील होगा, कुछ भी हो तो हम तुरंत इन्फॉर्म कर सके हमें। और हमने फोटो भी भेज चुकी थी वो ड्राइवर की, हमने पूरा लोकेशन वगैरह शेयर कर दिया था, लाइक कुछ भी हो, और हमें उस टाइम ना कॉन्फिडेंट और स्मार्टली एक्ट करना है, लाइक अगर आप वो कैब ड्राइवर के सामने आप घबरा जाएंगे ना, तो वो और समझेंगे कि आप घबरा गए हैं, तो मैं इजिली इनको कुछ भी कर सकता हूँ। बस वहां पे आपको कॉन्फिडेंट रहना है और एकदम स्मार्ट प्ले करना है, ऐसे नहीं कि आप घबरा गए हैं तो, आजकल वुमेन चिल्लाना चालू कर देती है, तो वहां पे आपको थोड़ा काम भी एक्ट करना है, और एकदम स्मार्ट प्ले करना है, स्मार्ट मूव्स लेना है, लाइक उनको पता भी नहीं चले आप कुछ कर रहे हैं या पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो वो वहां से आपको कहीं दूसरे वे पे या कुछ ऐसा कर ले। अब मैं आपको एसओएस इमरजेंसी के बारे में बताती हूँ। एसओएस इमरजेंसी कैसे ऑन करते हैं और कहाँ से ऑन करते हैं। एसओएस इमरजेंसी क्या होता है, ये एक एसओएस मतलब सेव आवर सोल्स, इट इज अ मोड डिस्ट्रेस सिग्नल है ये, जो इंडिकेट करता है डेंजर को। अब मैं आप सबको बताती हूँ, सबके पास एंड्रॉयड या आईओएस तो होगा ही, तो जैसे एंड्रॉयड और आईओएस आईओएस में आप पहले जाएंगे अपने सेटिंग्स पे, अगर आप मेरे साथ करेंगे तो आप भी अभी ऑन कर सकते हैं। You just have to tap on settings. Here are some instruction that I am telling. आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है, मैम दिख रहा है। यस यस, इट्स विजिबल। uh, वी हैव टू गो इनटू आवर फोन सेटिंग्स, जो yes, जनरल फोन we सेटिंग्स just होती have है। to open our phone and go in and tap to the settings. So इधर आप नीचे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा इमरजेंसी एसओएस। अब इसमें क्या होता है, आप इसमें क्लिक करेंगे ना इमरजेंसी एसओएस में, लाइक सेफ्टी इमरजेंसी में, आईओएस में होगा इमरजेंसी एसओएस, और एंड्रॉइड पे होगा सेफ्टी इमरजेंसी। यस, तो आप एक बार सेफ्टी चेक एंड करेंगे तो आपको इमरजेंसी, यस। दिखेगा। हम्म। हाँ, तो आप उसमें जाएंगे और आपको वो टर्न ऑन करना है, इसमें टर्न ऑफ होगा ना तो आपको उसे बस ऑन करना है। अब वहां पे आपको कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगी, लाइक आपको 5 कॉन्टेक्ट नंबर पूछेंगे जो आपके इमरजेंसी में काम आ सकते हैं,
लाइक मेन यू कैन राइट योर, जैसे जो 5 ट्रस्टेड फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स, किसी के भी नाम आप उसमें डाल सकते हैं। तो लाइक क्या होगा, अगर आप किसी डेंजर पे लाइक इमीडिएट आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। तो आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम अप करने का और वॉल्यूम लो करने का, यहाँ पे आप अगर वो 5 नंबर्स डालेंगे ना अपने, तो उन्हें क्या होगा, आप अगर 5 बार इसे प्रेस करेंगे, लाइक हियर, ये जो वॉल्यूम कम और ज्यादा करने का है ना, तो कम करने के आपको 5 बार अगर आप प्रेस करेंगे उसे अपना, तो जिन जिन नंबर को आप डाले हैं, डायल किए हैं उसमें, जिसमें आप सिलेक्ट किए हैं, तो उन सबको आपकी लोकेशन, करंट लोकेशन, और उनको कॉल चले जाएगा तुरंत, बिना आपका, अगर आपका आपके पास नेट नहीं है तो भी वो चले जाएगा। लोकेशन, बस आपको लोकेशन हमेशा ऑन रखनी है अपनी फोन की। तो आप इसमें 5 बार ऐसे करना है प्रेस, 1 2 3 एंड 4, 5 बार यहाँ पे दबाना है। तो क्या होता है, वो सारी आपकी करेंट लोकेशन चले जाएगी वो 5 लोगों के पास, और आपका कॉल चले जाएगी 5 लोगों Okay, के पास। ये फेंक देना। So it is the safest thing. I hope this is clear. Yes, absolutely, Vanshika. This was much required. Yes, ma'am. So यार जो मैम आपको बता रही थी, आपके चाइल्ड या आपकी कोई बिलोंगिंग्स जो आप कैरी कर रखे हैं, तो उन्हें आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप डील कर सकते हैं उस टाइम पे। कोई आपकी चेन ऐसे करके स्नैच करके चले गए, कोई आपके पर्स वगैरह उठा के चले गए, तो आपको उस टाइम क्या करना है। जब आप इमिडिएटली आपको क्या करना है, आपको वो जो, जब कोई कार या फिर कोई ऐसे तो नहीं कोई दौड़ते दौड़ते आपका स्नैच करके जाएंगे, तो आपका कोई अगर बाइक से कोई गया, आपकी चेन स्नैच करके गई, ऑफ कोर्स आपको लगेगी, but what you have to do, if you can immediately you can grab his hand, so you just have to grab and you just have to pull down, so वो क्या होगा, जो पीछे बैठा हुआ होगा ना वो नीचे गिर जाएगा। और आपको अगर वो भी नहीं होता तो आपको क्या करना है, वो नंबर प्लेट को नोट करके रखना है, एकदम मतलब रिमेम्बर रखना है कि आप अगर पुलिस के पास जाते हैं तो आप उनको नंबर बता सकते हैं कि वो एकदम मतलब तुरंत उनको देख सके कि कौन आपका कुछ करके गए। So you just have to remember the details about number plate, and always remember what the number of police, women and child care, like गवर्नमेंट में अभी अभी women and child care के लिए वो किया है, तो उसका 181 नंबर है। और अपने अगर चाइल्ड आपके सेफ नहीं है, तो आपके चाइल्ड को तो हमेशा अपने फैमिली मेंबर्स के नंबर याद होनी चाहिए और एड्रेस याद होनी चाहिए, कोई जैसे आपको कोई स्ट्रेंजर वगैरह भी उन्हें बता सके। और एम्बुलेंस वगैरह की सारे नंबर आप नोट कर सकते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड केयर। Vanchika, just one thing. Can you please explain that setting? Ladies are asking that after setting आपको कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है? अच्छा, this ऐसे one. सेटिंग ना, यस मैम, आप अपने फोन पे जाते हैं तो वहां पे सेटिंग्स करके आएगा, तो आप वो सेटिंग्स को क्लिक करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये देखो सेटिंग्स यहाँ पे आई, तो आपको नीचे नीचे जाना है, ऐसे नीचे नीचे जहाँ Vanshika, stop screen sharing. I think then they will be able to see you on the screen. यस मैम, Yes. Now you can show them. ये यहाँ सेटिंग्स में आप गए, तो आपको बस क्या करना है, नीचे नीचे जाना है। अब ये तो मेरा iOS है इसलिए मुझे ऐसे है, तो iOS में क्या होता है, इसमें लिखा होता है इमरजेंसी एसओएस, दिख रहा है यहाँ पे इमरजेंसी एसओएस लिखा हुआ है। But in Android, it is mentioned emergency. इमरजेंसी एंड सेफ्टी मैम, इट इज Emergency and safety. In हाँ, Android, it is mentioned. एंड्रॉइड में जाके थोड़ा scroll down करेंगे. And it is Yes, ma'am. mentioned emergency. emergency and Safety and safety. emergency. Yes. हाँ, तो देन व्हाट यू हैव टू डू, लाइक वहां पे ऐसे, मेरा यहाँ पे टर्न ऑन ही है, तो यहाँ पे जैसे टर्न ऑन है, तो यहाँ पे आपका टर्न ऑफ होगा, तो आप उसे टर्न ऑन करना है, और वहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मांगेगी, 5 नंबर्स मांगेंगे। And in Android, there is a different heading for the same. In हाँ, the yes, Android, you will go in the safety and emergency. The top heading is emergency information. हाँ, Can you see that? You have to That is mention the place. the Yes, information. that is the place where you can add contacts. It is going to ask you add contacts. So contacts are already saved in your phone. So you just have to type that person's name and it will be saved over there.
Okay, like if you have saved your husband's name as husband, so you just type H and your husband name will be saved. So you can save at least 4 to 5 numbers in that emergency information. Yes, Right? like here I have saved 5 names. So you just have to on it and यहाँ पे आपको काउंटडाउन साउंड भी आएगा. जैसे आप 5 बार गलती से भी कभी दबा देते हैं तो आपको वो काउंटडाउन उसमें पूछेगा कि आपको इमरजेंसी में क्लिक करना होगा, तब वो जाके आपकी लोकेशन सेंड होगी. अब यहाँ पे लोकेशन भी आती है. आपको वो लोकेशन को हमेशा ऑन करना है. सेटिंग्स पे जाके वो लोकेशन हमेशा ऑन रखनी है. Ma'am, in Android it is also location only. Yes, in Android also it is location. Yes. Yes. So you just have to turn on the location. Like you turn on the SOS now. So फिर आपने अगर 5 times इसमें प्रेस किया, एंड्रॉइड में 3 times होता है, iOS में 5 times होता है. तो आपने इसमें 5 times वॉल्यूम माइनस को इसको 5 बार 1 2 3 ऐसे करके टैप करना है. मतलब वो जैसे फिर आपको एक वो आएगा, पूछेगा आपसे कि आपको इमरजेंसी साउंड ऑन करना है क्या. तो आपने उसमें क्लिक करना है. फिर वो जिन 5 नंबर के आपको कांटेक्ट डाला है उन 5 को आपका लोकेशन चले जाएगा और कॉल भी चले जाएगा. That's a wonderful thing. I think most of us haven't even used this thing in our phones. Yes, We ma'am. were knowing that we were having this kind of option in our phones, but I think we did not even check it once. So Yes. very good, Vanshika. Thank you so much for sharing this wonderful information with us. Ma'am, it is a I think shortest you thing. should all share this information with your family members also who are not aware about the same thing, and especially the teenage girls and boys who are using the mobile phone, but they are not aware about this process. So do mention this to everybody. Okay, and this activity, this SOS option is both in iPhone as well as in Android also. okay. Ma'am, it is a shortest trick that you can use when you are feeling unsafe and you are feeling Okay. like you have surrounded by people. So just you have to tap this and you can like you're safe now. So I think Vanshika, now we should ask everybody to get up and do some martial art activities with Yes, Vanshika. तो सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना फोन सेट कर लें एंड स्टैंड एवरीबडी and let's do some actions with Vanshika, and let's learn these small techniques, and we are going to wrap up the session with a little physical activity also for you all, so that we can get that energy of facing such terrible situations in our life, which we never imagined. But of course, this self-defense techniques are going to help you out and would definitely make you come out of those panic situations. Okay. And Vanshika, one more thing I wanted to know from you is that Yes. these days with the elderly ladies, not even elderly ladies, any lady, that chain snatching thing is very common. So how to save ourselves when somebody just grab our chain or something when we are in the market? Yes, So ma'am. what should we do? मैम लाइक समवन लाइक मैम जैसे कि अगर कोई जाता है तो शो ऑफ नहीं करना है किसी को कि आपने चेन Right. पहना हुआ है, 5-10 रिंग्स पहनी हुई है हाथ में. तो आप अगर शो ऑफ करेंगे तो उनको और अट्रैक्ट करेगा. तो यू जस्ट हैव टू कवर योरसेल्फ. और अगर आप कहीं अपने पर्स रख के जाते हैं, आपने अगर अपना पर्स कैरी किया हुआ है, मैम एम आई ऑडिबल? Yes, yes. अगर आपने अपना पर्स कैरी किया हुआ है तो आपने क्या करना है. अब जैसे अगर अपने पर्स में आपके कुछ एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पर्स को कैरी करके अपने उसमें अपने दुपट्टे से कवर कर लेना है, जैसे कि वो शो नहीं हो कि आपने कुछ कैरी किया हुआ है. But in case Vanshika, हाँ, we are not carrying anything and they literally, standing in front of us and snatching. So what we should do? How to stop or how? अगर जैसे अगर कोई है और आपने तुरंत अगर आप उनका हाथ पकड़ सकते हैं तो दैट विल बी सो गुड. लाइक आपका यहाँ तक कोई आया तो आपको तुरंत एक्शन लेना है. यू जस्ट डोंट हैव टू थिंक. और आपको वहां पे कोई घबराने का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा. मतलब आपको कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ घबराना भी नहीं है. आपको एकदम लाइक यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये सब चीजें आजकल कॉमन हो चुकी है. बस आपको सेफ रहना है और अपने आप को डिफेंड करना है. बस आप वही कर सकते हैं. आप ये सब चीजों को रोक तो नहीं सकते. तो Right. आपको क्या करना है कि आप अगर तुरंत आप प्रिपेयर है,
मतलब आप अगर घर से निकल रहे तो आप सोच के निकलिए, अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। लाइक तो आपको क्या होगा, आप तुरंत तुरंत वो नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं कि यार मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया। तो आपको कहते हैं क्या ना, हाँ, सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो प्रिकॉशन रखें। स्पेशली जो लेडीज को आदत होती है मोबाइल फोन हाथ में पकड़ के जाना, शॉपिंग मॉल्स में बच्चों को बस बस तक पिक करने जा रही हैं, फोन आर इन देयर हैंड। So please, you are creating a panic situation for yourself only. Never carry mobile phone in your hand if you're wearing if you're wearing Indian outfit, because you don't have pockets to keep your phone. Otherwise, always prefer to wear that kind of suits which should have a pocket. Never hold it in your hand, that is not allowed. I have seen many ladies, they are holding the handbags also in the hands, like not even the handbags, the wallet in which they have the money and the cards, they are holding them in their hand, and the mobile phone also in the other hand. How will you save yourself in that situation if somebody is going to bump on your face? You will fall down and your all things will be scattered here and there. मैम So मैं sure. Yes Vanshika. मैम जैसे कभी कोई अपने जीन्स पे या फिर कहीं लोअर वगैरह पे जो बैक पे लगते हैं ना फोन वगैरह, तो हाँ, वहां पे कभी फोन नहीं रखना चाहिए। और कभी right. भी अपने फोन के कवर के अंदर ना ही कभी कुछ पैसे रखने चाहिए, ना ही कोई इम्पोर्टेंट कार्ड रखना चाहिए। ये बहुत रखते हैं इंडिया में, तो बहुत कॉमन है ये। एंड Yes. इट डजंट लुक गुड एंड इट लुक्स सो क्लमजी एंड अच्छा भी नहीं लगता कि आपने अपने कार्ड के उसमें होल्डर में मैम मेन रखा थिंग है। इज फोन हीट होती है, और फोन फोन अगर ज्यादा हीट हो गई तो वो कभी भी, जैसे कभी कभी होता है ना, फोन ऐसी थोड़ी ऊपर होने लगती है, बैटरी बाहर आने लगती है, यस तो यस यस। फोन को भी कुछ डैमेज हो सकता है, और आपके लिए भी सेफ नहीं है वो रखना, वो बहुत हीट करता है। तो फिर आप ऐसे कान पे रखते हैं तो फिर हम्म। आपको हीट होगी तो आपके अंदर वो वाइब्रेशन जाएगी, इस कारण आप राइट। कभी फोन पे Always वो carry a sling bag. You should always रखिए। have a sling bag, and the sling bag should be in your front side. That is visible to you when you are even having a walk, when you're walking, or even if you're driving a two-wheeler. Right? So Yes. for that reason being, it's very important that we should all follow these techniques which we are mentioning you. And I'm sure you all might be enjoying the session and you have got a fruitful information for yourself. And please, every day, keep on talking to your toddlers or your children who are below 7 years old. What is good touch? What is bad touch? Every Sunday, make sure you tell your child what is the meaning of bad touch, good touch, and always ask them, is there anyone bothering you? Is there anyone who is not making you comfortable, my child? Because that kind of bond is very important with your child. Okay, now Vanshika, let's do some taekwondo and have that vibe of survival in any kind of situation. And Vanshika, a big round of applause to you, dear, for holding the session so well and giving us the informative information which we were not knowing earlier. But thank you so much, our dear Vanshika. And she's our student also of Skill Ninja Academy. So Yes, we I are am very proud a of you, Vanshika. And on behalf of Skill Ninja Academy, I want to thank you for bringing up such a sensitive issue for us and making us learn new things with you. Thank you, my Vanshika. trainer is also here, Yes, Davinder Davinder Kumar. ma'am is also there, who's her trainer. She has I've been encouraged her a with lot. her from last past 5 months, and my 6 months is going. Oh, So I God. thank her especially That is wonderful, that wonderful. I And get we so can well see that supported. confidence in your speaking also that you're Yes, learning with Devinder ma'am. That is absolutely wonderful, amazing. So अब थोड़ा सा एक हल्की सी कुछ activity sure. करते हैं, Yes. okay? And then Okay. we will give you 10 to 15 minutes if you have any questions you want to ask from Vanshika, okay? Come Thank. on, ladies. Yes, yes. Just join with me. Just And learn just some see fun how what things. she is. So I will motivate you with a thrilling story. घायल परिंदा है तू, Okay, come on. याद जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू Very जो good, Manjeet ji. फैसला, रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह रे बंदे, हर मैदान फतेह।
14-day loop break. That's a world record. Welcome back. Sound like an icon. इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के For me. So, ma'am, whenever we use this punches, like for the face, we use this, and for this bottom part, we use this, and for the kick thing, we just have to, ma'am, opposite kick and opposite punch, like opposite kick and opposite punch. Yes, Seema ji is doing very well. Seema Kumari बहुत अच्छे से कर रही Ma'am, हैं. I see many ladies are doing Yes, many of them are doing great. well done. Sheila ji, well done. That's the spirit. Wow. Ma'am, Neena ji, Sunitha ji, they are हाँ देखो so well. क्या बात है. Ma'am, they're enjoying. Bright smile on everybody's face. That is wonderful. So I think Vanshika, all are very happy with you. They have wow, Rashmi. मतलब ये चीजें हमें इतना अच्छा फील करवाती हैं कि हम आपके लिए अगर कुछ लेके आ रहे हैं. So you all are also, coming up and following the techniques which we are mentioning you. Thank you so much, Vanshika, and looking forward for another workshop again from you on some other topic. Yes. Till that time, I would ask, we will give them this platform now to ask their questions. So if any one of you have any question, just raise your hand. Devinder ma'am, over to you. You can just pick up the name of that one particular person and please keep yourselves on mute. Okay. And we will take your name. You can unmute yourself and then ask the question. Thank you so much on behalf of Skill Ninja Academy. And we want your encouragement also. So keep on following us on Facebook, Instagram, YouTube, and keep on giving us your good feedback. That will encourage our Skill Ninja team also to bring more wonderful workshops for you all. And yes, we all have to meet at 4 o'clock as well for the wonderful seminar talk track with Mehak. So don't miss that also. Be free at 4 o'clock and join us in that informative session which we are having at 4 o'clock. So see you all there. And do call your family members also if they want to join this program that we are going to launch in our talk track today at 4 o'clock. Till that time, I'm taking you off, everybody. Thank you so much for joining. Thank you, ma'am. To you, Vanshika and Devinder, and wonderful job, Vanshika. Thank you, ma'am.